بأيدي أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم تمام حضرات بندے خدا کی جانب لو لگا کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کیجیے اور پڑھیے باوضع بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد نماز مغرب سے جو قرآن میں ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو. اب یہاں پر مسئلہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑی ساری نعمتیں دی ہیں. اللہ تو فرمانا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو. تو اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی اولاد کے پیدائش پر اس کا تذکرہ کرتا ہے، آج جناب ماسٹر اظہر ان کے اولاد، ان کا بیٹا اسعد کی ولادت کی خوشی میں انہوں نے آج محفل میلاد پاک کا چایا بسایا. تو اما بنعمت ربک فحدث کے زمرے میں آئے کریں گے. رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو. آج یہ لائٹ، یہ شامیانہ، یہ کھانا، یہ پینا، یہ سارا انتظام کیوں؟ ماننا ہوگا کہ انہوں نے اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے اس ساری چیزوں کا اہتمام کیا. تو اب یہ پتہ چلا ایک اولاد نعمت ہے، اس کے تذکرے کے لیے محفل میلاد پاک کرنا جائز ہے. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص بتا دے، بتائیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جلدی ختم کیجیے. اب میں آپ کا سبق لیتا ہوں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ کی ذات ہے. سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے کہ رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو. میں نے ساری نعمتوں کا محاسبہ کیا، وہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ رسول پاک کی ذات ہے. پتا چلا اس آیت کریمہ کے تحت رسول پاک کے تذکرہ کرنا قرآن سے جائے. آگے بڑھے. یہاں صاحب اولاد ہے، اللہ کا شکر اکثر و بیشتر لوگ صاحب اولاد ہے. اللہ کی نعمت اولاد ہے. لیکن آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ نعمت ہے. سنیں توجہ طالب ہوگا. بیٹا جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. بیٹی کیا ہے؟ تو بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے. میری ماں بہنیں سنیں، آپ بھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ بیٹا اللہ کی نعمت، بیٹی بھی اللہ کی نعمت. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے. نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. لہذا بیٹیوں کی مقام زیادہ اونچا ہے. میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بے شک بیٹے کی بھی حیثیت ہے، لیکن بیٹی کا مقام شریعت کہتی ہے. اگر گھر میں کچھ لے کر کیا ہو، یارے کچھ دین کی باتیں سن لیجئے. کھانا تو آپ کو ملتا ہی رہے گا. آپ کا گھر میں بھی کھانا ہے، آپ کھانے کا محتاج نہیں ہو. اگر آپ محتاج ہو تو اس میں دین سیکھنے کا محتاج. اس پر غور کرو. اب گھر میں آتے ہیں نا، جب آپ مٹھائی یا کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں، نہیں لاتے ہیں تو لانے کی کوشش کیجیے. اگر نہیں لاتے ہیں تو لائیے. اور وہ جانتے ہیں وہ مٹھائی کس کے ہاتھ میں دیا جائے؟ بیٹی کے ہاتھ میں تھما. اللہ اس کا نصیب کیسا کرے گا. لیکن کم از کم بیٹی تمہارے گھر میں ہے تو اس کی عزت و وقار کو سمجھو. اور پیارے یاد رکھنا، میرے سرکار فرماتے ہیں بیٹی جب اب تمہارے گھر میں ہے وہ تمہارے گھر کی نعمت ہے. لیکن یہی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے، شادی کے لائق ہو جاتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے نا
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन नकहा फस्तकमल ईमान, जिसने निकाह किया उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। सुने, बेटी बाप के घर में थी तो वो अपने घर के लिए नेमत थी, रहमत थी, लेकिन वही बेटी की जब शादी हो जाती है, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं मन नकहा फस्तकमल ईमान, जिसने निकाह किया उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। और आगे चले, जब उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उसी बेटी के बदन से एक बच्चा जन्म लेता है। अब वो माँ के दहलीज पर पहुंच गई है। अब जब माँ बन गई है तो आइए हदीस पाक की रोशनी में बात करूं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिहिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जब माँ बाप के घर में थी तो माँ बाप के लिए रहमत थी, जब शौहर के पास आई तो शौहर के ईमान मुकम्मल करने का जरिया बन गई। जब माँ बन गई, इसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया गया। लिहाजा बेटी हर हाल में रहमत है, भर में है रहमत है, बीवी बनी रहमत है, माँ बनी रहमत है। लिहाजा बेटियों के इज्जत और एहतराम करें। आज कुछ लोग, हर एक की बात नहीं करता हूं, इल्ला माशाअल्लाह, अगर किसी के यहाँ चंद बेटियां जन्म ले, चंद बेटियां अगर पैदा हो, चंद बेटियां किसी के कोख से जन्म ले, तो आज उस औरत को अभागन समझा जाता है, आज उस औरत को हकीर नजर से देखा जाता है। इसके बदन से सिर्फ बेटियां पैदा हो रही है, और वो सास जो खुद एक में किसी की बेटी है, वो सास जो खुद किसी की बेटी है, वो अपने बहू को कोसना शुरू कर देती है। तुम कैसी हो जो अपने सिर्फ बेटी जन्म पैदा कर रही हो, सिर्फ बेटी पैदा कर रही हो। ऐ नालायक औरत, बेवकूफ औरत, अगर बेटी होना जहमत होता, अगर बेटी होना मार दिया जाता तो सबसे पहले तुझे मारा जाता। इसलिए तू भी तो किसी की बेटी है, तू भी तो किसी की बेटी है। इसलिए बेटियों को जहमत ना समझो। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिसके पास 3 बेटियां हो, अगर उन बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत करे, और तालीम और तरबियत करने के बाद उसकी शादी रचा देते, वो शख्स जन्नती है। वो शख्स क्या है? जन्नती है। सुने, अब एक साहब रसूल ऐसे हैं जो खड़े हो जाते हैं जिनके पास 2 ही बेटी है, जिनके पास 2 ही बेटी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा। अगर अल्लाह करे, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा ही, कि अगर हम अपने बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने के बाद शादी रचा दें, तो इंशाअल्लाह मुझे इस हदीस के जुमरे में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। इसलिए ये किसी और की बात होती, शक की गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन ये किसी और की बात नहीं, मेरे सरकार की बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है। 3 बेटी वाले शख्स क्या है? जन्नती। अब तो फंस जाएंगे जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, 2 ही बेटी है कि नहीं? हमारे कारी अनवर तबस्सुम साहब 2 ही बेटी के बाप है कि नहीं? अब ये फंस जाए। इस्लाम में मायूसी का मकाम ही नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना। आप में से कितने शख्स के पास बेटी? हाथ उठाए तो जिनके पास बेटियां हैं, हाँ, जिनके पास बेटियां हैं, माशाअल्लाह, बेटियां अल्लाह की नेमत है। और जिनके पास बेटी नहीं है, तो जिनके यहाँ जिनकी बीवी है वो तो हाथ कम से कम उठाइए, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है। और अगर बेटी नहीं तो वो भी हाथ उठाए जिनके मां है। इसलिए मां भी तो किसी की बेटी है, मां भी तो किसी की बेटी है। लिहाजा बेटियों के नाम पर एक मरतबा हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। सब लोग कंजूसी से हाथ मत काम लीजिए, यार हाथ उठा करके बोला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने, अब मेरे सरकार फरमाते हैं जिनके पास 3 बेटियां हो, अगर वो अच्छी तालीम और तरबियत के बाद उसकी शादी रचा दे तो वो शख्स जन्नती है। अब एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 ही बेटी है, मेरे पास 2 ही बेटी है। मेरे सरकार फरमाते हैं घबराओ नहीं, जिसके पास 2 ही बेटी हो और अगर उसकी अच्छी तालीम और तरबियत के बाद उसकी शादी रचा दे तो वो भी शख्स जन्नती है, वो भी शख्स जन्नती है। अब सहाबी, एक ऐसे सहाबी हैं जिनके पास एक ही बेटी है, एक ही बेटी है। वो अर्ज कर रही या रसूल अल्लाह, जिनके पास एक बेटी है
اس کے لیے کیا کوئی بشارت ہے؟ میرے سرکار مسکراتے ہیں، میرے سرکار مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، جس کے پاس ایک بیٹی ہو اور اچھی تعلیم و تربیت کے بعد شادی رچا دے تو وہ بھی شخص جنتی ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ، اور زور سے، اور زور سے سنو، میرے سرکار فرماتے ہیں جس کے پاس ایک بیٹی ہو اور اگر وہ اپنے بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کرانے کے بعد شادی رچا دے تو وہ بھی شخص جنتی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نبی مختار نہیں ہے، اگر میرے نبی مختار نہیں ہوتے تو جنت کی بشارتیں کیسے باتیں؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، رتبے کے نوجوانوں ایک جملہ دے رہا ہوں، نوٹ کر لو۔ جنت کو رب نے بنایا ہے لیکن جنت بھیجنے کا حق مصطفیٰ کو ہے۔ جنت کو رب نے بنایا ہے لیکن جنت جانے کا پروانہ دینے والے کوئی اور نہیں، ہمارے سرکار کی ذات۔ اب ایک اور صحابی رسول ہے جن کے پاس ایک بھی بیٹی نہیں۔ اللہ سنیں، ذہن قریب کرو۔ صحابی رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک بھی بیٹی نہیں ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی کیا تیری خواہش ہے کہ تیرے پاس بیٹی ہو؟ سنیں وہ میری ماں بہنیں جو بیٹیوں کے جنم کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جو لوگ بیٹیوں کے جنم کو منحوس سمجھتے ہیں وہ سنیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا تیری خواہش ہے کہ تیری بیٹی ہو؟ صحابی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بیٹی ہوتی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی اگر کسی کے پاس بیٹی نہ ہو، توجہ ادھر ہے، اور اس کی صرف یہ خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بیٹی رہے تاکہ میں بھی اس کی اچھی تعلیم و تربیت کے بعد شادی رچا دوں، میرے سرکار فرماتے ہیں وہ بھی شخص جنتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ لہذا بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت بھی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں بیٹیوں کا مقام اتنا اونچا کیا گیا ہے۔ اے میرے قوم کے مقدس شہزادوں، آج بعض لوگ، ہر ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، بعض لوگ بیٹیوں کے جنم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ میں ان پاگل نوجوانوں، پاگل انسان سے کہنا چاہتا ہوں آئے رسول پاک تو فضیلت اتر پڑی، آئے رسول پاک تو فضیلت اتر پڑی، بیٹی ہوئی جو پیدا تو رحمت اتر پڑی۔ وہ لوگ پاگل ہیں جو بیٹی کے جنم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ نادان تیرے گھر میں تو جنت اتر پڑی، نادان تیرے گھر میں تو جنت اتر پڑی۔ لہذا میرے قوم کے مقدس شہزادوں، بیٹیوں کو ہر حال میں رحمت سمجھو۔ اس لیے میرے سرکار نے ایسے موقع پر بیٹیوں کے مقام کو اتنا اونچا فرمایا ہے، اتنا اونچا فرمایا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت، آخری بات کہنا چاہتا ہوں چونکہ میرے بعد بھی آپ کو تقریر سماعت فرمانی ہے، آخری بات، لیکن غور سے آپ سنیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک واقعہ آپ کے ذہن کو، میں آپ کے ذہن کو ٹٹولنے کے لیے بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر آپ کا ذہن حاضر رہے۔ میں جانتا ہوں بھوک پیاس شدت سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، لیکن جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ انشاءاللہ بھوک اور پیاس سے نہیں رکے گا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں تڑپے گا۔ ہم سے تو اچھے وہ فلسطین کے مسلمان ہیں جو آج 3 مہینہ سے بھی اسلام کے آبیاری کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں جو 3 مہینے تک کی کیا، ہم 3 گھنٹے تک کے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے سرکار ایسے عرب کی سرزمین، عرب کا دستور تھا، بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو ابھاگن سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کے جنم کو انشگن سمجھا جاتا تھا۔ جب اسلام اس دنیا میں نہیں آیا ہے، جب پیغمبر اسلام اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں لائے ہیں، جب میرا پیغمبر اس دنیا میں جب نہیں لایا ہے، وہ ایام جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، زمانہ جاہلیت ہے، جس دور میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور دفن
कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। एक ऐसे सहाबी रसूल हैं जो ईमान जमाना जाहिलियत का दौर छोड़ करके रसूलुल्लाह पर ईमान ले आए हैं। जब उन्होंने ईमान लाया, ईमान लाने के बाद लोग अपने माह जो जिंदगी कटी हुई थी, जो जिंदगी उनकी गुजरी हुई थी, उसके बारे में तज़किरा कर रहे थे। एक सहाबी जब लोग आपस में अपने गुजरी माजी बातें को, अपने पास्ट बातों को, अपने गुजरे हुई बातों को याद कर रहे थे, एक ऐसे सहाबी रसूल हैं जो अर्ज करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे सहाबी कहो तो सही, तुम्हारे साथ क्या मामला हुए है? वो सहाबी रसूल जिनके आंखों से आंसू जारी हो गए हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान जमाने जाहिलियत में मैं था, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी वो कौन सी गुनाह है, वो कहो तो सही। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, जमाने जाहिलियत का था, मेरी बीवी हमल से थी, मैं जंग करने के लिए बाहर तशरीफ ले जा रहा था, और जब मेरी बीवी हमल से थी, जब मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो मैं अपनी बीवी से जाते जाते ये नसीहत करके गया था, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी, अगर तुम्हारे शिकम से कोई बेटा जन्म ले तो उसे जिंदा रख लेना, उसे जिंदगी दे देना, लेकिन अगर तुम्हारे शिकम से कोई बेटी जन्म ले तो उसे जिंदा दरगोर दफन कर देना, उसे पैदा होते ही मार देना। ये नसीहत करके मैं अपनी बीवी को गया हुआ था, और जब अपने बीवी को कह करके ये बात जब रुखसत हुआ, जमाना गुजरता रहा, काफी दिनों के बाद मैं जब अपने घर वापस आया, मैं अपने घर वापस आने के बाद अपनी बीवी के साथ रहना शुरू कर दिया है। लेकिन जब मेरे जाने के बाद मेरी बीवी जो हमल से थी, मेरी बीवी जो उम्मीद से थी, मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा था, वो पैदा होने वाला कोई बच्चा जन्म नहीं लिया था, बल्कि पैदा होने वाला कोई बच्ची जन्म ली थी। जब कोई बच्ची जन्म ली थी, मैं वापस आया, वापस आने के बाद अपनी शरीके हयात से कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी, आखिर बता तो सही, जो मैं तुम्हारे पेट में अमाना छोड़ करके गया था, वो बच्चा के शक्ल में पैदा हुआ था या बच्ची के शक्ल में पैदा हुआ था? वो बीवी अर्ज करने लगती है, ऐ मेरे शरीके हयात, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आपकी जो अमानत थी वो एक बेटी जन्म ली थी, मैंने इसे जिंदा दरगोर दफन कर दिया था, मैंने उस बेटी को मार दिया है। लेकिन मेरी बीवी ने ऐसा नहीं, बल्कि मेरी बीवी ने जब उसके पेट से बच्ची पैदा हुई थी, उसको परवरिश करती रही। लेकिन जब मेरे आने की बारी आई, जब मेरा आने का वक्त करीब आया, जब अपने घर और वतन वापस लौट रहा था, उसी दरमियान मेरी बीवी ने पड़ोस के घर में जाकर के मेरी बेटी को दे दी, और जाकर के पड़ोस के घर में ये कह दी थी कि मेरा शौहर वापस आने वाला है, ये मेरी बेटी है। अगर मेरा शौहर जान गया कि ये मेरी बेटी है, अगर मेरा शौहर को मालूम हो गया कि ये मेरी बेटी है, तो मेरा शौहर इसे जिंदा दरगोर कर देगा, मेरा शौहर इसे मार देगा। लिहाजा ऐ मेरी पड़ोस की औरत, मेरी बेटी को संभाल ले, मेरी बेटी को अपने पास रख ले, ताकि मेरा शौहर इसे जिंदा दरगोर दफन ना कर सके। ये कह करके पड़ोस के यहाँ वो बच्ची को छोड़ करके आई थी। जब पड़ोस के यहाँ बच्ची को छोड़ दी थी, मेरा बाप, मैं जब वो शौहर वापस आया है, वापस आने के बाद अपने बीवी के साथ रहना शुरू कर दिया है। जमाना गुजरता आ गया, वही पड़ोस की बच्ची जब उसके घर में आती थी, वो आने वाला शख्स जिसका नाम हातिम है, हातिम ने अपने उस बच्ची, पड़ोस की बच्ची को समझ करके उस बच्ची से बेपनाह प्यार करने लगा, उस बच्ची को अपने साथ खिलाने लगा, अपने साथ पिलाने लगा, अपने साथ बैठाने लगा। बचपना है, अभी छोटी सी मासूम सी बच्ची है, पड़ोस की बच्ची समझ रहा था ये मेरी कोख से नहीं है, चूंकि मेरी बीवी ने कह दिया है कि जो मेरे कोख से तुम्हारी बेटी जन्म ली थी, मैंने उसे जिंदा दरगोर दफन कर दिया है। लेकिन पड़ोस की बेटी अब उसके घर में आ रही है, हातिम ने बच्ची को प्यार करना शुरू किया, हातिम ने बच्ची को अपने साथ खिलाना शुरू कर दिया, हातिम ने उस बच्ची को पिलाना शुरू कर दिया। काफी दिन गुजरता रहा, बेटी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब हातिम के बीवी ने देखा कि अब मेरा शौहर को उस बच्ची से बेपनाह प्यार होता जा रहा है, उस बच्ची को प्यार कर रहा है, उस बच्ची को अपने गले से लगा रहा है, उस बच्ची को अपने साथ खाना खिला रहा है, उस बच्ची को अपने साथ पानी पिला रहा है, उस बच्ची को अपने साथ गोद में जगह
दिखा दे रहा है। रात का सन्नाटा था, बीवी ने अपने शौहर से एक बात कहा जो बीवी के दिल में हिजाब बंद करके, अब बीवी के दिल में जो एक राज छुपा हुआ था, वो बीवी अर्ज करने लगती है, ऐ मेरे शौहर, मैं एक राज की बात छुपा करके रखी हूँ। ऐ मेरे शौहर, एक राज की बात छुपा करके रखी हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। वो शौहर अर्ज करने लगता है, ऐ मेरी शरीके हयात, कहो ना वो कौन सी बात है। वो बीवी अर्ज करती है, मेरे शौहर ये बताइए, जो पड़ोस की बच्ची आपके पास आती है वो कैसी लगती है। हातिम ने कहा, वो बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है। उस बीवी ने कहा, ये बताइए उसकी आंखें कैसी है। वो हातिम ने कहा, उसकी आंखें तुम्हारे आंखों से मिलती है। उसके रुखसार कैसे है। हातिम ने कहा, उसके रुखसार तुम्हारे रुखसार से मिलते हैं। उसका रहन सहन कैसा है। हातिम ने कहा, वो बहुत प्यारी बच्ची है, उस बार वो बच्ची बहुत प्यारी है। उसकी बीवी ने अर्ज की, वो बच्ची से आपको प्यार है कि नहीं। हातिम ने कहा, मैं उस बच्ची से प्यार करता हूँ। हातिम ने कहा, मैं उस बच्ची से प्यार करता हूँ। उस बीवी ने अर्ज किया, ऐ मेरे शौहर, मैं एक राज की बात छुपा करके रखी थी। वो राज की बात यह है कि वो बच्ची किसी और की नहीं है, मेरे ही कोख से जन्म लेने वाली वो आपकी बेटी है। सिर्फ आपके डर की वजह से मैं पड़ोस में छोड़ करके आई थी। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस पड़ोस के यहाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कह दूं कि ये आपकी बेटी हो, तो आप इसे जिंदा दरगोर दफन ना कर दीजिएगा। इसी मकसद के तहत मैंने उस बच्ची को पड़ोस के यहाँ छोड़ दिया था, ताकि वो बच्ची से जब आपको प्यार हो जाए, जब उस बच्ची की मोहब्बत आपके दिल में जगह बना ले, तब मैं आपको हकीकत हाल से वाकिफ करा दूं। ऐ मेरे शहर, वो किसी और की बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी है। वो आपका खून है, वो आपकी नस्ल से है। अब हातिम जैसे तैसे रात को गुजारा है। रात गुजारने के बाद हातिम जब सुबह सवेरे का इंतजार किया, सुबह होने के बाद हातिम ने एक हाथ में कोड़ी को लिया है। कुल्हाड़ को लेने के बाद उस बच्ची को लेकर के अरब के रेगिस्तानी इलाके में लेकर के चले जा रहे हैं। बच्ची के हाथ को थमा है, बच्ची के हाथ को थाम करके, और हाथ में एक जानिब को कुल्हाड़ को लेकर के उसी बड़े रेगिस्तान इलाके में चले जा रहे हैं। बच्ची को कल तक के प्यार की नजर से हातिम देख रहा था, आज बच्ची को प्यार की नजर से नहीं देख रहा है। लेकिन उस बच्ची को क्या मालूम कि जो बाप कल तक के हमसे प्यार कर रहा था, इसके ज़हन और दिमाग में ज़माने जहालियत का एक हैवानियत जन्म ले चुका है। वो बच्ची को लेकर के चला जा रहा है। बच्ची अपने बाप से पूछ रही है, बाबा जान कहाँ जा रहे हो। बाबा जान, आज आपका तेवर बदला बदला सा लग रहा है। बाबा जान, आज आपका मिजाज उड़ा उड़ा सा लग रहा है। बाबा जान, आज आपके चेहरे में मोहब्बत नजर नहीं आ रही है। बाबा जान, आज आपके चेहरे में एक हैवानियत जाहिर हो रही है। लेकिन वो हातिम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अरब से के रेगिस्तानी इलाके में चलते चलते बहुत दूर जब निकल जाता है, उस बच्ची को एक किनारे बच्ची को बैठा देते हैं, और बैठाने के बाद हातिम जमीन को खोदना शुरू कर देता है। हातिम जमीन को खोदना शुरू कर देता है। जब हातिम जमीन को खोद रहा था, मासूम सी बच्ची थी, नन्ही सी बच्ची थी। उसे क्या मालूम कि उसके बाप के नीयतों में क्या चल रहा है। उसे क्या मालूम उसके बाप के ज़हन दिमाग में क्या बातें परगर्दिश कर रही है। वो बेटी अपने बाप से पूछती है, बाबा जान ये क्या कर रहे हो। अरे बाबा जान, कड़ाके की धूप है। अरे बाबा जान, खून पसीना आपके पेशानी पर जाहिर हो रहा है। वो बच्ची जो अपने बाप के करीब जाती है, करीब जाने के बाद कहती है, बाबा आप बैठ जाओ, गड्ढे को मैं खोदती हूँ। बच्ची खुद उस कब्र पर उतर करके अपने हाथों से बालू को निकालना शुरू कर देती है। बाप से अर्ज कर रही है, बाबा जान, आपके पेशानी में पसीना जाहिर हो रहा है। वो मासूम सी नन्ही सी मासूम सी कली अपने दामन को लेकर अपने बाबा जान के पेशानी से दामन से पसीने को सुखा कर कह रही है, बाबा जान आप आराम कीजिए ना। बाबा जान, आपके पेशानी से पसीना जाहिर हो रहा है। मासूम सी बच्ची अपने दामन से अपने बाबा को हवा देना शुरू कर देती है। अपने दामन से बाबा को हवा देना शुरू कर देती है। ऐ मेरे बाबा, आप बैठ जाइए, आपके पसीने में, आपके पेशानी में पसीना हमसे देखा नहीं जा रहा है। अरे बाबा आप आराम कर लीजिए। लेकिन वो हातिम जिस ज़माने जहालियत में, जिसके ज़हन और दिमाग में हैवानियत समा चुकी थी, बेटी की एक भी नहीं सुनी, कब्र को खोदता चला जा रहा है। कब्र को खोदता चला जा रहा है। बच्ची कब्र में खुद उतर करके बालू को निकाल रही है, बाप को तसल्ली दे रही है, साया बन करके काम कर रही है। जब कब्र तैयार हो गया,
दिया है। बेटी ने जब देखा बाप कब्र में उतार करके बालू डालना शुरू किया है, मासूम सी बच्ची थी, उसने अर्ज की बाबा जान मुझसे मजाक कर रहे हो, बाबा जान मुझसे बालू बालू खेल रहे हो, बाबा जान मुझ पर बालू डाल रहे हो। बेटी भी बालू उठा करके बाबा पर फेंकती है। बाबा इसका हाजिम इधर बालू को डाल करके बेटी को दफना रहा। बेटी को ये लग रहा है मेरा बाप मुझसे बालू बालू खेल रहा है। बेटी को अब भी अपने बाप से रहमतों की दामन नहीं छोड़ी थी। बेटी अर्ज करती है बाबा जान क्या कर रहे हो, लेकिन बेटी जब बालू में दबना शुरू हो जाती है, जब दबना शुरू हो जाती है, बेटी अर्ज करती है बाबा अब मत खेलिए, बाबा अब मत खेलिए, देखिए मैं दब रही हूँ, बाबा अब मत खेलिए, देखिए मेरे जिस्म पर बालू पड़ रहे हैं, बाबा अब मत खेलिए, मेरा जिस्म अब दब रहा है। अरे मेरे बाबा ये क्या कर रहे हो। लेकिन हाजिम के ज़हन दिमाग में हैवानियत समा चुकी थी, बालू को डालता चला जा रहा है। वो बच्ची अर्ज करती है बाबा अब ये बालू मेरे जिस्म तक के, मेरे सीने तक के आ गया है, मेरी सांसें रुक रही है। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो। लेकिन हाकिम ने एक भी नहीं सुनी। बेटी अर्ज करती है बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे जिंदगी की भीख दे दो, बाबा अब मैं तेरे गोद में कभी नहीं बैठूंगी, बाबा मुझे क्यों दफन कर रहे हो, मैं तुझसे कभी खिलौने की फरमाइश नहीं करूंगी, बाबा मेरे साथ क्या मामला कर रहे हो, कभी मैं खाना नहीं मांगूंगी, बाबा कभी भी पानी की फरमाइश नहीं करूंगी, बाबा कभी तेरी गोद में नहीं बैठूंगी। अरे बाबा मुझे जिंदगी की भीख दे दो, अरे बाबा मुझे जिंदगी की भीख दे दो। लेकिन वो बेटी की फरियाद हमेशा अपने बाप को चिल्ला चिल्ला कर अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही। लेकिन हाकिम जिस पर ज़माना जाहिलियत सवार हो चुका था, इस्लाम की मोहब्बत अभी इस्लाम इस खानदाने गीती पर नहीं आया था। उस वक्त इन बेटियों को जब जिंदा दरगोर दफन कर दिया जा रहा था, ये बेटियां अपने बाप से जिंदगी की भीख मांग रही थी। उस वक्त उस बेटी की फरियाद बाबे इजाजत से टकराती है। अल्लाह की बारगाह में वो बेटी अरीज़ा पेश करती है, मौला कब तक के बेटियां जिंदा दरगोर दफन होती रहेगी, कब तक के बेटियों को जिंदा मारा जाता रहेगा, कब तक के कन्याओं को जलाया जाता रहेगा, कब तक के बिहाई हुई बेटियों को उसके पति के चिते के साथ सती कर दिया जाता रहेगा, कब तक के महिलाओं के मान सम्मान को लूटा जाता रहेगा, कब तक के इन बेटियों को, इन औरतों के मान सम्मान इज्जत नफ्स से खेला जाता रहेगा। कोई ऐसा मोहसिन इंसान को भेज दे जो इन बेटियों के जख्म दिलों पर मरहम लगा सके, इन महिलाओं को मान सम्मान दे सके, इन बेटियों के इज्जत और आबरू को बचा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रबीउल नूर शरीफ के 12वीं तारीख को सोमवार के दिन सुबह सादिक को अपना आखिरी पैगंबर इस रहमत और जोश के साथ भेजा कि जहां तारीख था, जुल्मत कथा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, किसी शाय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबो ताला में, हिरा के गार से शमए नबुव्वत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा कर फेरा, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। अमीरे कारवां बनना था उनको नौजवान होकर, नरपन जिंदगी गुजरी भेड़ और बकरी चराने में। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे सरकार जब इस रानी की